السلام علیکم ناظرین شام 4 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل شمالی کشیر ہندس ورملس مز آز تمہ سات پلسس لاش برآمد سپزمژ یل لوکو طرف پلسس زان دن آئی ون آز دوپہرن لوکو طرف سیمٹ کدلس نزدیک دریائے جہلمس مز لاش وچھنہ آمت یم پتہ مقامی پلس تھانس اطلاع دن آئی پلس طرف یہ لاش تحویلس مز نت لوازمات پور کرنا آئی تج معاملس حوالہ کیس درج کرت تحقیقات شروع کرنا آمت تہ پاؤ ژیتس زِ پتمہ کیا کال پہ ضلع بارہمولہ کین مختلف علاقن مز دریائے جہلم مز یت پٲٹھۍ نامعلوم لاش پلسس برآمد سپزمژ یم پتہ پلس طرف یم تحویلس مز نن پتہ تحقیقات شروع کرنے تو شناخت سپدن پتہ لواحقینن یم لاش سپرد کرنے تج آز دوپہرن تہ سیمٹ کدلس نزدیک دریائے جہلم مز پلسس لاش برآمد سپزمژ یس زن پلس کس تحویلس مز تہ پلسن معاملس حوالہ کیس درج کرت مزید تحقیقات شروع کور ات خبر پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت ورملی پہ سن ساتھی ارشاد بٹ اس موجود ارشاد سیمٹ کدلس نزدیک یس آز پلسس لاش برآمد سپزمژ کیا تفصیلات امہ حوالہ تہ نش جی بالکل امین اگرچہ ہم اس لاش کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ تیرتی ہوئی دکھائی دی یہاں پہ دریائے جہلم میں اور اس کے بعد جو ہے مقامی نوجوانوں کی طرف سے مقامی لوگوں کی طرف سے کافی مشقت کی گئی اس کو نکالنے میں اور اس کے بعد جب اس کو نکالا گیا اس کے بعد جو ہے جموں کشمیر پولیس کو بھی اطلاع کیا گیا اور باقاعدہ طور پر یہاں پہ ڈی وائی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد الطاف کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایس ایچ او کنسرن جو صدر تھانے کے ایس ایچ او ہے محمد رفیق وہ اسپاٹ پہ پہنچے اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن چلی اس کے بعد جو ہے یہ پتہ چلا کہ توحید گنج کا رہنے والا ہے عبد الحمید صراف اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ 60 سالہ اس کی ایج ہے اور باقاعدہ طور پر اس انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئے گی کس طریقے سے یہاں پہ یہ انسیڈنٹ پیش آئے کیا اس نے خودکشی کی یا کچھ اور معاملہ ہے یہ آنے والے ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا فی الحال اس کو جی ایم سی یعنی کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج پہنچایا گیا تاہم وہاں پہ باقاعدہ طور پر جو ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہو گئی یعنی کہ ایف ایس ایل رپورٹ جب جو ہی سامنے آئے گا اس کے بعد جو ہے پوری طرح سے ڈیٹیل سامنے آئی کیونکہ یہی وہ سپاٹ ہے جہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے دریائے جہلم کے کنارے پہ ہم اس وقت موجود ہیں اور یہیں پہ یہ انسیڈنٹ پیش آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس کو بازیاب کیا گیا اس دریائے جہلم میں سے حالانکہ یہاں کے آس پاس کے پڑوسی جو آزاد گنج اولڈ ٹاؤن کے مختلف علاقوں کے لوگ یہاں پہ آئے چاہے دکاندار طبقے کے لوگ وہ بھی اسپاٹ پہ پہنچے اور بالخصوص دیگر علاقوں کی بات کریں جہاں سے چند لوگ آئے تھے اور اس لاش کو نکالنے کے بعد پوری طرح سے جو ہے اب پولیس بھی اپنے حساب سے جو ہے انویسٹیگیشن چلائے گی اور جو ہی تحقیقات کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئے گی بالکل ارشاد اگر اس بات کرو پولیس تو لاشیں شناخت سپز یت تہ ونو توحید باغ گوک روزن وول عبد الحمید یہ کیا مقامی لوک تہد کیا ونان امس حوالہ دماغی توازن اس امس برابر یا دویم کیا معاملات کن خودکشی یا بالکل بالکل دیکھیے امین آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی کیونکہ یہ پی ایچ ای محکمے میں بطور یہ ملازم تھا حالانکہ اس کے بعد جو ہے جب یہ ریٹائرمنٹ اس نے لی اور اس کے بعد آج یہ گھر پہ ہی ہوتا تھا اور آج سے تقریباً 3 دن پہلے یہ گھر سے جو ہے لاپتہ ہوا اس کے بعد جو ہے گھر والوں نے بھی کافی مشقت کی پہلے یہ فجباغ میں رہتے تھے اس کے بعد جو ہے جب ہم نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ کیا یہ کہاں کا رہنے والا ہے اور بتایا جاتا ہے توحید گنج کا رہنے والا ہے فی الحال کے طور پر یہ جب پولیس جو انویسٹیگیشن کرے گی اس معاملے کو لے کر جو ہے اس انویسٹیگیشن پورا ہونے کے بعد جو ہے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئے گی فی الحال یہ رہائش پذیر تھا یہاں پہ توحید گنج میں یعنی کہ جو اولڈ ٹاؤن کا علاقہ شہری خاص کا علاقہ ہے اور وہاں سے یہ تعلق رکھنے والا اور دیکھا جائے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے اس لاش کو یعنی کہ اس ڈیڈ باڈی کو یہاں سے نکالا گیا بالکل ارشاد تہد سٹھا شکریہ خبرنامس مز اس روزن باپت سیمٹ کدل ورملس مز دریائے جہلم مز لاش برآمد پلس طرف لاش نمس پنس تحویلس مز ابتدائی تفصیلات مز ون توحید گنج بارہمولہ روزن وول عبد الحمید بٹ یم سز لاش دریائے جہلم مز برآمد کرنا آئی تو پلس طرف معاملس حوالہ کیس درج کرت مزید تحقیقات شروع کرنا آمد
जम्मू कश्मीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये पतमो कैंचो दो पे लगातार नार वारदात पेश इन सहित रिहायशी मकानन तो जंगलन मज कौमी सरमायस सठा नुकसान सपुद तच लोन पथरी टंगमर्ग मज त रात पे जंगलस मज नार जारी यम किन अत सठा नुकसान सपदन खबर त मौसूल सपजम जन महकमे जंगलात तरफ नार छवरावनस हवाले कोशिश जारी तह पाओ चत रात शाम पत इलाकस मज जंगलस मज नार ज़ाहिर सपदमुत यम पत मुकामी लूको तरफ महकमे जंगलात कन जिम्मेदारन जान दिन आई तो महकमे जंगलात तरफ मुख्तलिफ टीम इलाकस कुन रवाना करना आमच यम जन रात पे यह नार छवरावनस मज सठा मशगूल वुचन ये जन महकमे जंगलात के जिम्मेदारों तरफ लोकन वन आमुद तम गन जंगलस मज एहतियात वर्तन युत जन अत कौमी सरमायस नुकसान वात तह पाओ चत पतमे कया काल पे जम्मू कश्मीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज नार वारदात पेश यथ दौरान न सिर्फ रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपदन बल्कि जंगलन मज नार लगन सत अत कौमी सरमायस सठा नुकसान वातन टंगमर्ग मज नार वारदात तो अत पे मजीद तफसीलात फराहम करने बाबत टंगमर्ग पे सन साथी इशफाक डार। इशफाक, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल लोन पथरी इलाकस मज तो तफसीलात क्या तह नश अत नार वारदात हवाले? जी बिल्कुल अमीन साहब, अगरचे हम इस टंगमर्ग के लोन पथरी जंगलात की अगर बात करेंगे, यहाँ पर कल अगरचे 7 बजे के करीब आग नमूदार हुई है और अगर आग नमूदार होते ही यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनने आग देखी तो उनने यहाँ पर जो मुतलका महकमा है फायर इमरजेंसी सर्विस है उनको इतला दी है। तो जब हमने भी महकमा से बात की तो उनका ये कहना था कि ये काफ़ी इलाका जो है द्रंग टंगमर्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, क्योंकि ये लोन पथरी के जंगलात जो है यहाँ पर काफ़ी फायरवुड भी मौजूद है, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से जो बर्फबारी के दौरान पेड़ गिरते हैं वो इसमें मौजूद है। उसी वजह से यहाँ पर अचानक शायद ये कोयले वाले या कोई जो यहाँ पर पहाड़ों पे इस वक्त लोग रहते हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो आग नमूदार हुई है, कई यहाँ पर जो कोयला बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर रेंज ऑफिसर टंगमर्ग जो जावेद अहमद नाथ खान है उनसे बात की तो उनका कहना है कि जो ये लोन पथरी का इलाका है और यहाँ पर भयानक आग इस वक्त भी जारी है, ताहम यहाँ पर महकमा वाइल्ड लाइफ और महकमा जंगलात के साथ साथ यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लोग जो है यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। सोपोर से कुछ लोग जो है मुलाजमीन जो वो यहाँ पर मंगाए गए हैं, लेकिन अभी भी इस वक्त जब लाइव नशर के दौरान भी आग पर जो है काबू नहीं पाया गया है। वहाँ इस वक्त भी भयानक आग इन जंगलात में जो है जारी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम इन जंगलात की बात करेंगे, ये घने जंगलात हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता कई बरसों से हमने देखा कि अगरचे महकमा की तरफ से कई बार शजरकारी भी की गई है, लेकिन उस शजरकारी को रोकने के लिए, यहाँ पर उस शजरकारी को मजीद फाल बनाने के लिए महकमा की तरफ से उस तरह के इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसमें फेंसिंग होती तो यहाँ पर मकामी लोग इस इलाके में नहीं जाते। वही तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर इस तरह का आग नमूदार होता है तो यहाँ पर जो जंगली जानवर है उनको भी खदशात होते हैं, वो ऊपरी इलाके में यहाँ जा सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से आग भयानक हुई है और इस भयानक आग ने पूरे इस जंगलात को अपनी लपेट में लिया है, वही महकमा जो जितने तीनों महकमे चाहे वाइल्ड लाइफ हो, प्रोटेक्शन हो, महकमा जंगलात हो, उनकी तरफ से कोशिशें जारी है। महकमा का दावा है कि आज रात भर इस पर काबू पाया जाएगा और कोशिशें की जाए, क्योंकि यहाँ पर एक नाला भी बहता है और पानी क्योंकि वहां तक लेना काफी मुश्किल है, उस वजह से महकमे को काफी दुश्वारियां भी आ सकती है। जयमिन साहब। इशफाक तुहद सठा शुक्रिया खबरनामस मज रोजन बापत यम इशफाक डार यम जन टंगमर्ग पे द्रंग इलाकस मज लोन पथरी जंगली इलाक अत रात पे नार ज़ाहिर सपदमुत महकमे जंगलात के मुलाजिमों तो अफसरों तरफ यह नार छवरावन भरपूर कोशिश करने ताहम वन नारस पे वन पूर पट काबू प्रावन आमद। मेंबर पार्लियामेंट वर्मुल इंजीनियर अब्दुल रशीदन ज़राए इबलाग सत करान वोनमुत तशद्दुद सिर्फ तबाही सपजम तो मसला हवाले पज तमाम स्टेक होल्डरन अमे हवाले कत बात करें युत जन कह हल छानने ये जन तमो वोन अवामी इत्तेहाद पार्टी रोज हमेशा नौजवान हज कत करान युत जन नौजवान हुंद मुस्तकबिल रोशन करनस मज आसानी सपदे। मैंने उस पर हर बार कहा, आज भी कहूँगा कि तशद्दुद हमें कहीं नहीं ले जाएगा। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि वो तशद्दुद को बाय बाय कह दें, टेबल पे आके बैठे, एक दूसरे की बात सुने। यहाँ 1 लाख लोग मरे लेकिन बदला कुछ नहीं, उसमें फौज के लोग भी थे, मिलिटेंट भी थे, आम लोग भी थे। किसने मारे वो अलग बात है, कैसे मरे अलग बात है, लेकिन मरे तो इंसानी जान ही। हर एक पे लाजम है, इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीरी, तमाम स्टेक होल्डर्स कि वो टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करें, एक बाइज़्ज़त हल दे दें। मसले का हल 370 हटाना, 35 से हटाना, स्टेट हुड वापस लेना नहीं है, बल्कि टेबल पे आके
जितने भी फरीक कश्मीर के मसले के हैं मिल के आके बात करें। मेरा अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी से यही सवाल है जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप नागालैंड में, लद्दाख में, आसाम में लोगों से बात कर सकते हैं तो कश्मीरियों को आप पाकिस्तानी एजेंट कहकर, पाकिस्तान के दरपर्दा कहकर सच्चाई से भाग नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वो भी अपने हिसाब से काम करते होंगे, उनका अपना तरीका होगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे ज़मीर की आवाज़ है, वो जो वो करते थे वो उनका अपना फैसला होगा। मैं यही कहूँगा कि इतना करके भी कि हक अदा नहीं हुआ। मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है रात दिन काम करने के लिए, मैं उन जवानों के लिए निकल रहा हूँ जो मेरी गैर मौजूदगी में अपने घरों से निकले, अपनी जेबों से गाड़ियों में तेल डाला, हज़ारों की तादाद में निकले, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जवान कल जिससे ये कहा गया कि अब तो इंजीनियर साहब जेल में गया, तुम्हारा वोट ज़ाया हुआ, मैंने उन तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, नहीं, मैं जेल में रहूँ या बाहर रहूँ, मैं आपकी बात करूँगा, आपकी तामीर तरक्की की बात करूँगा, आपकी तालीम की बात करूँगा, आपके रोज़गार की बात करूँगा, आपके मसाइल। छून बड़गमिस मज ये हाल आदिल बशीर नाव किस अकिस नौजवान सज लाश पुलिस मशकूक हालत मज बरामद सपज यम पत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव तत मुकामी लूको तो लवाकिनो तरफ मंग करना आमद ज्यात मामलस हवाले गए साफ शफाफ तहकीकात कर युन युद्ध जन आदिल बशीर सज हलाकत हवाले असल हकैक ब्रोह कुन इन तो लवाकिन इंसाफ फराहम करनी। मेरा नाम हारिस है और मेरा भाई का नाम आदिल बशीर है, जो कि नॉर्मली सुबह से जाता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि वहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम कर रहा था। तो जो ही ये 2 बजे से निकला तो 3 बजे इनकी छुट्टी होती है, तो फिर हमने इनको 4 बजे फ़ोन किया घर वालों ने, और फ़ोन तो स्विच ऑन था लेकिन स्विच ऑफ नहीं था, फ़ोन स्विच ऑन था। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक हुए, पूरी यहाँ पे जो फैमिली थी हम पैनिक हुए कि कहाँ गया। फिर हमने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो कि बड़गाम में पड़ता है, तो हमने वहाँ पे फौरी तौर पर इतला किया, और फिर बाद में इम्तियाज़ साहब ने, जो कि SHO बड़गाम है, उनका हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने पूरी कुछ मिनटों में ही हमें ये बता दिया कि आपकी बाया की लाश वो खान साहब में है। तो हम ये डिमांड करते हैं JNK गवर्नमेंट से, और जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे बड़गाम में, आई एम हैंडफुल रिक्वेस्ट टू DC बड़गाम कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। आज मेरे भाई के साथ हुआ ये, तो कल किसी और के साथ होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हैंडफुल रिक्वेस्ट कि मेहरबानी करके हमें जस्टिस मिले, ताकि किसी और को ये सज़ा ना मिले। जो कि मेरे भाई को बेरहमी से कत्ल किया गया, एक जो कि बुगरू में उसकी लाश पड़ी हुई थी, जो कि पूरा जख्मी था, उनके कान कटे हुए थे, उनके जिस्म में वो बॉडी मार्क थे, वो निशान थे, जो कि हम उनको यहाँ पर देखने के लिए, मतलब हम यहाँ उसको देख नहीं पाए, जो उसकी हालत थी बॉडी की। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन से, खासतौर पर DC बड़गाम से, कि हमें जस्टिस मिले, ताकि ये किसी और के साथ ना हो। आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। आपको पता है कि आपने अभी भी सुना, इसका भाई था अभी यहाँ पे, कि 24 तारीख को वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 2 बजे निकला है, और उसके बाद फिर ना उसने अपने वालिद साहब का, ना अपने भाइयों का, या ना अपनी बहन का भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसका पूरी रात इन लोगों ने बिल्कुल जाग के गुजारी, और सवेरे फिर ये बड़गाम थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, तो चंद ही मिनट में फिर SHO साहब ने उनको बताया कि अगर इसका नाम आदिल बशीर है तो फिर इसकी लाश खान साहब थाने में है। फिर जब पूरा गांव, ये पूरे गांव का बेटा था, ये खाली बशीर अहमद का बेटा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। फिर उस वक्त सारा गांव वहां पे गया, और हमने उसकी लाश को जब वहां पे देखा कि उसका बाएं वाला कान कटा हुआ था, सर पे इंजर्ड्स थे, और दोनों कानों से खून आया हुआ था। आंख में आपने देखा होगा कि उस वक्त आंख भी जख्मी थी, और दोनों बाजू पे ऐसा लग रहा था कि जैसे रस्सी से बांधा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि किसी प्लान के तहत उसका कत्ल किया गया है। और हमारी SSP बड़गाम साहब या SHO खान साहब, SSP DSP खान साहब है वहाँ पे, तो उनसे मोतबाना गुजारिश है कि इस केस की जल्द अज जल्द जांच की जाए, ताकि ये पता चल जाए कि इसका कातिल कौन है और इसकी वजह क्या हुई, कि इसको किस बुनियाद पे कत्ल किया गया है। और ये पूरे गांव की मोतबाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम से भी कि इसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है और किन बुनियादों पे इसका कत्ल किया गया।
मेंबर असम्बली शांगस एडवोकेट रियाज अहमद खानन देवी पूरा CS पूरा वनतराग तो दोयमन इलाकन हुन दौर कोरमुत या दौरान तिमो लूको तरफ वालिहान इस्तकबाल ते करना आव दौरस दौरान ये लूको तरफ कई मसल ते वतलावन आई तच मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दुतमुत तिहन तरफ वतलावन आमत मसल इजरावन सवालियन संजीदा कदम तुलने युद्धन आम लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन तरक्की करें कमाई बोट खसू प्रोग्राम बात है हमारे आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस हम समझ चुके हैं। मेरे इलाके में एक रिवायत रह चुकी थी साहब के मेंबरान असम्बली की, उस रिवायत को तोड़ने के लिए मैं आज तगदो कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ताउन साथ है। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया, फिर उस अवाम का शुक्रिया जिनने एक भारी तादाद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से जिताया है, और उस मैंडेट की बदौलत इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज मेरा प्रोग्राम यहाँ आने का यही होता है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया करूँ जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस चुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट को वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब करवाया। 10 साल की गैप जो आपने कहा, ये सही बात है, गैप है। एक तो जो पुराने मेंबरान असम्बली ने कुछ किया ना किया, जो अधूरा छोड़ा, उसको पूरा करना है। 10 साल की गैप को पूरा करना है। इंशाल्लाह मुझे अपने अवाम पर भरोसा है। हम साथ लेके कंधे से कंधा मिलाकर, जहन से जहन मिलाकर इस इलाके को एक मिसाली इलाका बनाएंगे। मेरा नारा है कि इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में शांगस अनंतनाग ईस्ट 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में अव्वल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। टाउन हॉल बडगमस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मेंबरशिप ड्राइव हवाले तकरीब सांस कर आमुत यथ मज अशोक कोल तो दोम लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत पार्टी लीडरन तो वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी जमीनी सोतरस पे मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युद्धन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी सहित वयस्त सपदन। नहीं, बीजेपी का वोट का आंकड़ा बढ़ गया है। 58,000 वोट हमको यहाँ मिला है। आप गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी से हम केवल 1,000 वोट से हारे हैं। हमने शोपियान में 6,000 वोट लिए हैं। हमने अनंतनाग वेस्ट में तकरीबन 6,000 वोट लिए हैं। हमने राजपुरा में 4,000 से ऊपर वोट लिए हैं। हमारा वोट का आंकड़ा कम नहीं हुआ है। हम केवल 19 सीटें जीत थे और 19 सीटों में से हमको 58,000 से ऊपर के वोट मिले हैं। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। 26.6% वोट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ये सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। एनसी को वोट परसेंटेज हमारे से बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी परसेंटेज के हिसाब से बहुत बड़ी पार्टी उभर कर आई है। ठीक है, आंकड़ों में हम पीछे रहे और एनसी के आंकड़े हमसे बढ़ गए हैं, ये बात हम मानते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ये गलत है। ये टारगेटिंग किलिंग जो होना है ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। इसको हम कंडेम करते हैं। और मैंने पिछले 2-3 दिनों से बार बार इस बात को कहा है कि ये जो पड़ोसी हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये इस प्रकार की हरकतें करता है। और मैं पूरा आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो सरकार है, वो इन हरकतों को समाप्त करेगी और ये सब जो है ये समाप्त होगा, ऐसा मेरा पूरा। मेंबरशिप ड्राइव हवाले आज हंदवरिस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीब सांस कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरो तो वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे वजीर अजम सुन मन की बात प्रोग्राम तो बोजन आव तत लीडरन तो वर्करन वन आमुत तम गन पार्टी जमीनी सोतरस पे मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी सहित वाबस्त सपदन। देखो, मन की बात आपको पता है कि हर महीने की लास्ट संडे को मन की बात होती है और हर बूथ पे हमारे जो वर्कर हैं, हम सब वर्कर हैं, तो हम मोदी जी की मन की बात सुनते हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसे अगर आज आपने सुनी होगी मन की बात, आपने आज भी कश्मीर का जिक्र उन्होंने किया। इस बात से आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा
पूरा वर्ल्ड जिसको मान रहा है मोदी जी, और उसको कश्मीर कितना नज़दीक है कि कोई भी मन की बात ऐसी नहीं होती जहां कश्मीर का जिक्र ज़रूर होता है। तो जो आज ये वर्कशॉप यहाँ पे था, हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का वर्कशॉप, हमारी पार्टी में हर 3 साल के बाद जो है पार्टी के इलेक्शन होते हैं, नए अहदेदार बनते हैं, उसके लिए जो मेंबरशिप ड्राइव है वो हमारी शुरू हो गई है। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट की जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके अहदेदार जितने भी थे वो बुलाए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान और उनकी पूरी टीम जो थी वो आज इस मीटिंग में थी। तो आने वाले वक्त में 29 तारीख को ऐसे ही वर्कशॉप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे और उसके बाद में हर जो हमारी बूथ है, बूथ लेवल पे भी ये हमारा जो प्रोग्राम है ये चलेगा। उसके बाद में जो हमारा पार्टी का प्रोसेस है इलेक्शन का, इंशाल्लाह वो शुरू हो गया आज से। तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारी पार्टी में जो पूरी चेंजेस है वो तो आपको देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो खाली इलेक्शन में आपको नहीं दिखती है, हर वक्त 24 घंटे हमारे जो लीडर है, वर्कर है, हम लोगों के बीच में रहते हैं। हुकूमत हो हमारी या हुकूमत ना भी हो, तो अभी आपने सुना होगा, मैंने बताया कि 2014 में हमारे 6 ही लाख मेंबर थे J&K में और 2019 में हमारे 16 लाख मेंबर थे, 16 लाख से ऊपर। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि 2024 में हम इंशाल्लाह कहाँ पे पहुँचेंगे। डल झील श्रीनगरस मज आज जनिन हिंद बापत बोट रेस मुकाबल साज कर आमुत यथ मज जनिन हिंद बड़ तादाद हिस्से न्यू। अत मौके पे ये गोडनिच 3 पोजिशन हासिल करन वाजन जनिन हज हौसला अफजाई करना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जन बायख्तार तो बावकार बनावनस हवाल यन प्रोग्रामन हुंद साज करने ये जन रेस मज शमूलियत करन वाजनो जनो तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव यन प्रोग्रामन हुंद साज गछ ब्रोह कुन त करने युन युत जन तिमन त ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। This is going to be the historical event where we are trying to involve only females in a traditional boat race. And for me, this is not only a sports event, this is not only an entertainment, but this is a big talent hunt. We have got a special technical team who are highly qualified, and they are going to assess the endurance, assess the paddling skill of the participants, and inshallah after completion of the race they will shortlist the around 25-30 girls, and with the consent of their parents our association is ready to own them and provide them a platform and free training to reach out to their goals. Thank you. अब देख लीजिए, ये हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है और सबसे खूबसूरती इस इवेंट में ये है कि इसमें 150 से ज़्यादा बच्चियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें ये इम्पोर्टेंट देखा जाएगा कि इसमें ऐसी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही जो पहली बार घर से बाहर निकली है। तो मुझे लगता है कि नया टैलेंट सामने आएगा और नया टैलेंट अनमास्क होगा आज के इवेंट में और ये ऐतिहासिक इवेंट बन जाएगा। और मुझे लगता है कि ये इवेंट आज हिस्ट्री क्रिएट करेगा और ये एनुअल इवेंट हो जाएगा। आप देख लीजिए, इट इज़ अ स्पोर्ट्स एज वेल एज टूरिज्म प्रमोशन। आप देख रहे हो कि आज ऑफ सीजन है हमारे डल को। अगर देखा जाएगा इस इवेंट को अगर हम एनुअल बनाएंगे, हम मोर अट्रैक्शन इसमें कर सकते हैं। और आज अगर हमारी कश्मीर की बेटियां इसमें पार्टिसिपेट करें, मुझे लगता है कि हर देश की बेटी इसमें पार्टिसिपेट करे। जैसे आपको तो नाजरीन, इस वक्त खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।